पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, जरस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध या विरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जय जिनेन्द्र सर। જય જિનેન્દ્ર. તમારો અવાજ જરાક. હા, let me check it out. Yes, now we're good. We're good. Yeah, okay, Yeah. good. Okay. Uh, shall we start now? Yes. Okay. Jai Jinendra, everybody. जय Um, जिनेन्द्र. so today is March 22nd, Saturday evening, and we are having our class on Chaudhala. So uh, Akshita Didi has already told me that you have gone through Dhala number 1. So we will start with Dhala number 2 today, and साथ में हम साथ में थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे कि डाला 1 में क्या आता था और what else we are supposed to learn, because this is the whole thing is so important that we understand the hierarchy, how the things are flowing. तो किस तरह से 6 डाला का रचना हुई, किस तरह से इसमें चैप्टर आते हैं, we will try to learn those things and then we'll enter into the dhala number 2. So without further delay, I will start the things. Any question? I'm going to ask questions to you people. So you have to answer me, so that way I know where we are, how far we are, and it will be good. All right? Is that okay, everybody? Yes? Yes. Yes. All right. Okay. So without further delay, let me bring my slides and then we can start talking from there. uh, Number one, if there is any question anytime during the class, please feel free to interrupt me. Number one, there is not going to be any interruption. Actually, जब क्लास चल रहा है, क्वेश्चन आया है, तो आंसर वहां पर ही होना चाहिए। और आप क्वेश्चन आपका ही होगा, मगर आपके सिवा लॉट्स ऑफ अदर पीपल कैन आल्सो हैव द सेम क्वेश्चन, सो फील फ्री टू आस्क. If it is not related to subject, we may just postpone that one, but most of the time I know you'll be asking question related to the subject. Okay, all right, so let's start.
on the right slide, so bear with me. Okay, can you see the slides on your screen? Yes, we can see them. Oh, you can see. Okay, very good. Okay. Okay, so Dala number 2, we are going to start. Before that, we will just have some idea what is this Char Dala about. So Pandit Daulat Ramji, he wrote down this Char Dala. He was born in Sasni in UP. Sasni is a place which is about 5 kilometers away from Tirthdham Manglayatan. And I'm pretty sure lots of you have visited Tirthdham Manglayatan, amazingly beautiful place that is there. And Pandit Dolaramji was born about 5 kilometers from there. He was born in year 1798. So close to 1800. So now we are in 24, about 20, so 400 years back he was born, yeah, almost about 400 years back he was born. And he wrote down Samaisar, he wrote down Chedala, which is called Mini Samaisar. Gurudev Sri Kanji Swami loved it so much. And he said, the essence of Samaisar is given in Chordala. Chordala में सुंदर रूप से, अति सुंदर रूप से सभी न्याय को रख दिया है और पद्य में है. It is in the poetry form, and lots of families, they have this one remembered by heart, and as a normal routine, daily routine in the morning, they will recite this one. So that's a Chordala. Now, meaning of the word Chordala. Can somebody tell me what does Chordala means? And Akshita Didi has taught you all very well, so you know it. So somebody can answer me from the Zoom or from the class. Unmute yourself and do it, okay? जय जिनेंद्र. जय ढाल का मतलब है protection. So there are 6 type of protection which is given in this in the form of Chardala. Very good, very nice. So what you said is very nice. Protection means a warrior, when he goes to the war, he has a sword in one hand and the shield on the other hand. Shield is to protect him. So to protect the soul from the worldly wars, there is a shield. So this is the 6 different types of shield he is describing. That's a one meaning of the word dhala. Other meaning of dhala is there are 6 tunes are there, 6 chapters are there, and each chapter has a different tunes. And so it's called different ragas. And because of the different ragas, it's called dhala also. So that's the meaning of Chordala. Very nice. Very good. Very nice. Okay. Now, when we learn first dhala, so how many gatis are there? How many realms of existence? Kitni gati kitni hai? 4 gatis. Okay. Number, bolo. देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति और नरक गति. Okay. Anything else? Anybody wants to add more? And Pancham gati, which is moksha. Okay, so that's the most important gati we forget. Why we forget?
Because पंच चार गति में हम अनादि से घूमते फिरते तो that's all we remember is four gatis. मगर we forget कि पंचम गति भी है, मोक्ष गति है, जो मेरा ध्येय है. सिद्ध गति है, मोक्ष गति है, वो मेरा ध्येय है. तो 5 गति हुई, बराबर. Can somebody else wants to add anything more in this gati besides 4 or 5? Anybody else wants to add any more in this gatis? I think Nigod Gati is something which we should talk about in the Gati Nigod, because that's the place where अनादि काल से वहीं रहते थे, वहां से बाहर आए, and from वहां से चार गति में भ्रमण करते. Ultimate goal is to go to the Pancham Gati. Absolutely beautiful. You have a great teacher. She's teaching you very good. I thought that I'm going to have a great time today, but anyway, it's okay. Very nice. So what you said is absolutely right. Structurally, there are 5 gatis, which we said: Narak, Tiryansh, Dev, Manushya Gati, and Siddha Gati, Moksha Gati. 5 gatis are functional gati. Structural gati, but functionally, as you said very well, there are 2 gatis only: Narak gati, Nigod gati and Moksha gati. So why do we have only two gatis? So I'm going to have a picture over here that there is a Pacific Ocean. If you take Pacific Ocean, 5,480 miles between Tokyo and Los Angeles. This is the Pacific Ocean, right? Then there is a, wait, what happened to my next slide? Okay. So on this side is a Pacific Ocean, and this side is an Atlantic Ocean. The huge oceans are there. And there is a teeny tiny land mass is called Panama over here, right? So this teeny tiny land mass is separating 2 huge oceans. Now, what you said, that the 2 gatis basically in Nigod Gati, like Pacific Ocean, I was there for time infinite. Time infinite. And when the time comes later on in the class, we will talk about what time infinite means. Right now, just say time infinite. Time infinite means when we talk about 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं, अरे ऋषभदेव भगवान 1 करोड़ी सागरोपम पहले हुए थे, और आधा टाइम साइकिल का, आधा काल चक्र का टाइम 10 करोड़ी सागरोपम है. सारे का सारा काल चक्र का टाइम 20 करोड़ी सागरोपम है. तो ये तो बहुत 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 लंबा टाइम है. मगर when we are talking about infinite, means Anant 24 came. Anant 24 came. Imagine kitna time hoga. So that is kind of time like Pacific Ocean's water. Think about it. That infinite time in the past, I was in Nigod, lowest form of life, Nigod. And 18 times a second, 18 times a second, I keep on birth and death forever and ever. So huge amount of time, infinite time. And when we are in the human being, it's like you are on the land, on this teeny tiny land, and
On that land, you have a drop of water on your hand. Drop of water on your hand. That is kind of Manushya Gati and thrust Gati, two sense life, 3 sense life, 4 sense life, 5 sense life, Dev Gati, Manushya Gati, Tiryanj Gati, Narak Gati. All those things are kind of drop of water in comparison to Pacific Ocean, which is like a Nigod. So this is teeny tiny amount of time I get it, and that is called 2000 Sagar years. Very minuscule time. And if we do right thing, then we come on this ocean over here, Atlantic Ocean, which is Moksha Gati. That person will live there forever and ever and ever and ever. So I was in Nigod forever and ever and ever and ever, and I came to Moksha ever and ever. So intense suffering in Nigod, intense happiness in the moksha. Only teeny tiny time I get it, and out of which Manushya Gati, out of which Jain family, out of which interest in Jainism, out of which learning Jainism, imbibing Jainism, putting Jainism in the life, obtaining Samyak Darshan, and from intense suffering of the Nigod, I come to intense happiness in the moksha. So, rest of the gatis are very teeny tiny area over here, and that is also a drop of water. So that's why when you say this, very good. Gati, functional gatis are 2 only. Ya to Nigod, Anant Dukh, या तो मोक्ष अनंत सुख. तो मुझे 2 ही चॉइस दिया गया है, तीसरी चॉइस भी नहीं. तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रेटी ऑब्वियस, मुझे अनंत दुख चाहिए या अनंत सुख चाहिए. दो में से क्या लेंगे आप? तो नेचुरली अनंत सुख चाहिए. सो फॉर दैट थिंग वी हैव टू डू द राइट थिंग. The right thing is to obtain Samyak Darshan. So Gurudev Sri gave messages to us for 45 years. How to obtain Samyak Darshan and how to progress further. So that my infinite misery of the Pacific Ocean type of infinite misery go away, and infinite blissful state I get it for my future life. Means moksha. So gati 2 ही है, निगोद, मोक्ष. In between जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, that is kind of immaterial. देखो, मेरे पास आपके पास से मैंने मिलियन रुपये लिया, है, और बाद में मैं आपको लोन वापस करता हूं. तो 999,000 रुपीस मैंने आपको पे कर दिया. अभी कितने बाकी रह गया? 2, 5, 10 रुपया बाकी रह गया. तो मैं क्या कह सकता हूं? अरे मेरा डेट निकल गया, मेरे पास कोई कर्जा नहीं रहा. तो अभी थोड़ा सा तो है, मगर वो जाने वाला है. इस तरह से ये जो 4 गति मिलती है ना, ये तो जाने वाली है. ते अनंत दुख गति हियर, अनंत सुख हियर. बस उतना ही मुझे समझने का है. तो इस तरह से हमने देखा कि गति तो, फंक्शनल गति तो 2 ही है. तो अभी क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं कि भाई देख, ये मनुष्य भाव कितना स्मॉल है तेरे लिए. हाउ मच टीनी टाइनीएस्ट टाइम वी हैव इट. तो बोला कि देयर इज अ नीडल थ्रोन एट वन एंड ऑफ द ओशन एंड a thread is thrown from the other end of the ocean. Now, when it is possible that this thread
will go through the eye of the needle in this ocean. Can you imagine that? तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, इम्पॉसिबल है, तो मनुष्य जन्म भी इतना ही इम्पॉसिबल है। मनुष्य जन्म इतना ही इम्पॉसिबल है। ये आई ऑफ द नीडल में से थ्रेड पसार करना, इतना जो हो सके वो ओशन में जो वहां हो सकता है, तो मुझे मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये महामूल्य मनुष्य जन्म मुझे मिला है। ये मनुष्य जन्म में मुझे क्या करना है? तो ये मनुष्य जन्म में क्या बताया? आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि तेरे पास एक नीडल है, दूसरे हाथ में थ्रेड है। तो अभी रात का अंधेरा है और लाइटनिंग इज अकरिंग, तो वो लाइटनिंग की लाइट में बिजली हो रही है आकाश में, लाइटनिंग की रात में, वो अंधेरे में घटाटोप अंधकार है, लाइटनिंग हुई, तो ये लाइटनिंग में ये जो नीडल है उसमें से थ्रेड पसार करना, ये तेरा कार्य है। सम्यक दर्शन इस तरह से तू करने वाला है। इतने छोटा सा टाइम तुझे मिलने वाला है, तो हमको ये मिला है, तो हमको आगे बढ़ना है और कार्य करना है। तो इस तरह से गति तो दो ही हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। So it's extremely rare to get the human life, as we just suggested right now. Soul is a nigot, lowest form of life for time infinite in the past. Soul comes out of nigot and then finishes one sense of life. Then soul enters thrust life. Thrust life means mobile living being, 2 to 5 sense living being. द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसमें जीव को 2000 सागरोपम का टाइम मिलता है। 2000 सागरोपम का टाइम। ओहो, बहुत लंबा टाइम हुआ। आपको बताया था कि आपको बताया गया है क्लास में पहली डाल में कि भी सागरोपम किसको कहते हैं। तो 2000 सागरोपम बहुत लंबा टाइम लगता है। इसमें 48 टाइम्स मनुष्य जन्म मिलता है। 48 टाइम्स में 24 टाइम्स तो आत्मा गर्भ में आया नहीं आया और निकल गया, तो बाकी तेरे पास रिमेनिंग 24 लाइव्स है। तो ये 2000 सागरोपम में ये मेरा 24th ह्यूमन बीइंग का लाइफ होगा। तो बाद में मैं कहाँ जाऊंगा? 2000 सागर पूरा हो जाएंगे और मैं फिर से वापस निगोद में चला जाऊंगा। तो क्या मुझे निगोद में जाना है? अनंत काल बाद में मैं निगोद में रहने वाला हूं। अनंत काल रहा था, 2000 सागर यहां रहा, बाद में फिर से जाऊंगा, फिर से बाद में आऊंगा। इस तरह से ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है मेरे लिए। तो 48 टाइम्स ह्यूमन लाइफ मिलती है, तो आफ्टर 2000 years सोल एंड्स अप गोइंग टू निगोद अगेन। तो मेरे पास महामूल्य मनुष्य जीवन है। मैं अपना कार्य कर लूं, आगे बढ़ जाऊं, तो मेरी मुक्ति हो सकती है। वो गुरुदेव जी ने हमको बताया है कि बेटा तेरे पास सब कुछ है, तू अपना कार्य कर सकता है। तो आज से ही हम वी विल टेक द vow today that I'm going to work first to know who I am. बाद में I'm going to work to purify myself, get Samyak Darshan, and keep going. I have to start my journey today, which you already have started before. So we'll do those kind of things. So that's kind of nigod, etc. We are talking about infinite time nigod for lowest form of life, infinite time of moksha for everlasting happiness. 2000 सागर का टाइम। यहाँ पर अनंत क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम
अनंत अनंत क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम हियर, और दूसरे बीच में 2000 सागरोपम का टाइम, टीनी टाइनी टाइम। तो ये हमको देखने का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गति में इंटेंस सफरिंग है? निगोद में, नरक में, ह्यूमन में, या तो देव में? कौन सी गति में है? इट इज निगोद गति, बिकॉज निगोद में ज्ञान अनंत विभाग का ही होता है. सो So generally we understand it is नरक गति, but actual में निगोद गति है. तो नरक गति में तो हमने पहली डाल में पढ़ा कि नरक गति में तो बहुत दुख है, हाथ पग कपाई वो परमाधमी देव कांपते हैं, और पानी की इतनी प्यास लगती है कि सारे के सारे सागर का पानी में पी जाऊं। भूख इतनी लगती है कि सारे के सारे विश्व में जितना अनाज है वो सब मैं खा जाऊं। ठंडी भी इतनी है कि जो गोला लोहा का गोला है वो टूट जाएगा। और दिन में गर्मी इतनी है कि लोहा का गोला भी पिघल जाएगा। तो इतना तो सफरिंग है। देखो, जब मेरे पास कोई इंद्रिया नहीं है तो वो इंद्रिय रिलेटेड मुझे कौन सा दुख होगा? एक इंद्रिय में 5 इंद्रिय नहीं है, तो आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है, तो एक इंद्रिय जीव को कौन सा दुख होगा? आपने बोला कि बहुत दुख होगा, मगर किस तरह से होगा, समझाओ मुझे। यहाँ तो नरक गति का निगोदनाथ दुख तो हमने पढ़ा पहली 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 ढाल में। तो यहाँ मुझे बेटर आंसर चाहिए, बोलो, बताओ। आई रिमेम्बर वन वर्ड, भाव कलंक का दुख होता है. मतलब कि एक निगोद के जीव को तो जीव ही नहीं समझा जाता है, और वो जो ज्ञान अनंत विभाग का हो जाता है, तो जीव का मेन एसेंस तो उसका ज्ञान है. जब ज्ञान पे ही इतना आवरण हो जाता है, तो उस हिसाब से मेरे दैट्स व्हाट आई कैन मेक टेल, लाइक एग्जैक्टली आई डोंट नो. Okay, no problem. Don't worry. It's a good try. Very nice. Anybody else wants to add or anything else? Somebody from the Zoom or the class? हाँ. जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, वो दुख जो निगोद सहन करता है, वो एक अ, वो बहुत बड़ा दुख है। तो आपने तो अभी तो बताया कि ज्ञान तो कम है, अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान है, उससे थोड़ा सा कम ज्ञान कम होगा तो जीव अजीव हो जाएगा, इतना ही ज्ञान है। तो देखो, अक्षिता दीदी तो डॉक्टर है, तो वो ऑपरेशन करती है, पेशेंट को एनेस्थीसिया देती है, बाद में पेट काटती है, काटती है चप्पू से, तो क्या पेशेंट चिल्लाता है? तो उसको तो सभी इंद्रियों को डल कर दिया है, तो उसको पेन नहीं है। तो यहां पर तो 5 इंद्रिय में से एक टच इंद्रिय है, उसको भी इसका ज्ञान इतना एनेस्थीसिया दे के कम किया है, तो उसको क्या पेन होगा, क्या सफरिंग होगी? हाँ, एनीबडी वांट्स टू ट्राई? आई थिंक वी आर नॉट. Okay, no problem. Don't worry. You are almost there. You are almost there. That's very good. क्या बोला आपने कि नरक गति में दुख है, बराबर। 5 इंद्रियां हैं, मन है, और साथ में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। यानी कि उसको मालूम है कि कल मुझे कौन मारने वाला आना है, अब कौन मारने के लिए आने वाला है। अब कभी दिल्ली जाओ ना, तो दिल्ली के पास में आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली में एक मंदिर बना है, वो 3 लोक मंदिर बना है। आपने पिक्चर तो देखा होगा। अभी जनवरी में मैं था, दिसंबर में जो तो हम गए थे वहां पर। तो
वो एलिवेटर में आपको ऊपर ले जाएंगे और बाद में आप नीचे आते जाएंगे, स्वर्ग के सुख देखते 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 मनुष्य गति और बाद में नरक गति के दुख दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से तीन गति, चारों गति में दुख है। तो यहाँ पर नरक में दुख है, मगर कौन सा दुख है? फिजिकल दुख है। मगर जिसको सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दृष्टि जीव को कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उसे मान लिया मैं तो शरीर से अलग हूं। तो he doesn't perceive any pain. And Nigod, for example, we have seen birth, human suffering and death. We have seen human suffering. हमने डेथ देखा है फैमिली में या तो सोसाइटी में, वॉट एवर। तो डेथ के टाइम पर का जो पेन होता है वो एक्सट्रीम पेन होता है। और यहां पर एक सांस में 8-10 बार इतनी दफा जन्म और मरण करने का है। तो ये पेन होता है, जो कि ज्ञान का उगाड़ बहुत कम है। फिर भी आपने वो शब्द बोला था, प्रचुर भाव कलंक, वो शब्द आप बोले थे, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। भाव कलंक मीन्स उस, देखो शरीर तो उसका साधारण शरीर है और एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, मगर ज्ञान तो आत्मा में होता है, राग द्वेष आत्मा में होता है, और जन्म मरण का दुख आत्मा में होता है। और एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण करना है, तो वो जीव को इंटेंस राग द्वेष होगा। इसलिए वहां पर इंटेंस दुख है। नरक गति में भी दुख है, मगर नरक गति में रिमेंबर संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, वो नरक में भी सम्यक दर्शन लेने की उसकी क्षमता है। इसलिए नरक का दुख, शारीरिक दुख हम देख सकते हैं, मगर निगोद का दुख है वो प्रचुर भाव कलंक, इंटेंस सफरिंग, इस तरह से शास्त्र में कहा गया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सांस में 8-10 बार का अर्थ क्या होता है? तो निगोद के भाव में एक श्वास में 18.5 भाव होते हैं। मीन्स के एक अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त ले लो, तो अंतर मुहूर्त में 363 भाव होते हैं एक अंतर मुहूर्त में। अभी वन श्वास मीन्स वन पल्स, वन श्वास मीन्स वन पल्स। एवरेज पल्स मनुष्य का होता है 75 पल्स पर मिनट, और अंतर एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट होता है। तो एक सांस यानी कि एक पल्स में 18.5 टाइम्स 75 पल्स पर मिनट टाइम्स 48 मिनट, तो 66,600 times birth and death occurs in 48 minutes time. That's why निगोद का जीव इंटेंस सफरिंग होता है। आप और मैं, हम सब निगोद में अनंत 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 काल रहे थे, और वेरी वेरी फॉर्चुनेट हम वहां से निकल के बाहर आए। निकल के बाहर आए इतना ही नहीं, त्रस नाड़ी में, त्रस पर्याय में भी आए। इतना ही नहीं, त्रस पर्याय में आके हमने मनुष्य गति भी प्राप्त की। इतना ही नहीं, जैन धर्म में इंटरेस्ट हुआ, गुरुदेव जैसे गुरु मिले, हमको तत्व निर्णय हुआ, तत्व की गहनता हुई। ये तो मोस्ट 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 इम्पॉसिबल थिंग। हम पूजा में गाते हैं ना,
बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। तो इतना तो इम्पोर्टेंट थिंग हमारे पास आ गया है। अभी थोड़ा सा पुश करने का है, हमको आत्मा की तरफ जाने का है, तत्व निर्णय करना है, तत्व की गहनता करना है, आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन लेना है। क्या ले सकते हैं हम? क्यों नहीं? जो मरीचि महावीर हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? सिद्ध दशा हमको भी हो सकती है। ऐसा ये 6 ढाला में से पढ़ते पढ़ते ऐसे न्याय आएंगे और समझ में आएगा। तो ये निगोद की बात करने के बाद में हम जाते हैं अभी जाते हैं हम 6 डाला में जो 6 ट्यून आते हैं, ये कौन से हैं तो होते हैं, उसकी बात करते हैं। पहला चौपाई छंद आता है। चौपाई छंद कैसा आता है हम देखते हैं। त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ये चौपाई छंद में पहली डाल है, तो पहली डाल ने ये 4 गति के दुखों की बात पहली डाल में चौपाई छंद में लिखी गई। देखो दौलत राम जी ने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। देखो ये 6 डाला की करीबन 100 जितनी 100 के आसपास गाथाएं हैं, और उसको उन्होंने एक ही ट्यून में लिख दिया होता तो मोनोटोनस हो जाता। तो 15-16 गाथा के बाद में दूसरी डाल आएगी, तीसरी डाल आएगी, चौथी डाल आएगी, करीबन 15 से 17 गाथा एक एक डाल में होती है। तो अगेन डिफरेंट ट्यून से हमारा उपयोग भी वहाँ पर जम रहता है। तो ये चौपाई छंद हुआ। दूसरा देखते हैं पद्धरी छंद। भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ये पद्धरी छंद हुआ, दूसरी डाल। अभी तीसरी डाल आती है। हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता, ते शिव मगला क्यों चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। ये जोगीरा सा छंद था, बाद में आएगा रोला छंद। चौथी डाल हुई। अभी 5वीं डाल में चाल छंद आता है। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी,
वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। और लास्ट में आएगा हरि गीति का छंद। षटकाय जीवन हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसान भावित अवतरी, लेश मसान जल मृणहु बिना, तियोग है 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित्य रमे रहे। इस तरह से 6 डाला में 6 अलग अलग छंद की रूप में प्रसिद्धि किया है। तो अभी ये तो हमने ट्यून देख लिया, मगर एक एक ढाला में क्या आता है तो उसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या आता है। ढाला 1 में I need to bring it a little bit, the fonts are too small. Okay, one second. Okay, let's see now. ओके, सो डाला 1 में क्या आता है। अभी सब्जेक्ट मैटर पर आप आते हैं कि डाला 1 में क्या बताया, 4 गति के दुखों की बात आई। निगोद की बात, पहला तो तिर्यंश की बात आती है, तिर्यंश में निगोद की बात आई। तो वो तो बताया कि अनंत प्रचुर भाव कलंक और अनंत 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 जीव वहां पर है। कितने अनंत जीव है। तो बताया कि एक पोटैटो का पार्ट लो आप, पोटैटो में से ऑन द टॉप ऑफ अ नीडल जितना पार्ट रहता है, टीनी टाइनी पार्ट, इन दैट वन देयर आर इननुमरेबल bodies are there, असंख्यात शरीर, and in each sharir there are infinite living beings. Infinite means भूत, वर्तमान, भविष्य के जितने सिद्ध हो गए, हो रहे हैं और होने वाले हैं, तो वो अनंत होंगे। वो सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव एक शरीर में यहाँ रहते हैं। ऐसे असंख्यात शरीर वाला एक सुई की टोच पर रहने वाला जमीकंद के पार्ट में इतने जीव रहते हैं। अभी आप सोच लो कि कितने जीव हो गए। हम निगोद में अनंत काल से थे, बाद में से निकले वहां से। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य मिला है। तो तिर्यंश गति का दुखों की बात आई, नरक की बात आई। ह्यूमन में तो हम दुख देख ही रहे हैं। देव गति में कौन सा दुख है, कौन बताएगा मुझे? देव गति का दुख क्या है? देव गति में जितना चाहिए उससे ज्यादा आपको मिलता है, सब कुछ ऐश आराम करने का है। तो वहां दुख क्या है? वहां समय दर्शन बिन जो
सम्यक दर्शन बिना जो है वे दुखी है, उनको लोभ होता है कि वो और जो ऊपर वाले देव हो उनके जैसे बने, उसका लोभ बस होता है। और उनको ये भी पता है कि आगे जाके मैं मेरा जब भाव चेंज होगा और ये मेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो ये सब सुख चले जाएगा, तो वो जो लोभ है वो बस बस उसका वो दुख है। लोभ का दुख है वहां पर। क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में भी वो नहीं चलता है कि भाई आपने एक कार ले ली आज। आप बहुत टाइम से आपको कार की जरूरत थी, आपने कार ले ली। हाँ, ये बेंगलोर में तो कार होना वो तो एक दुख की निशानी है, आई एम प्रेटी श्योर यू नो। मगर आपको कार मिल गई और आपके कलीग उसने भी नई कार ले ली, और उसकी कार तेरे से ज़्यादा थी, तेरे तेरे से बढ़िया थी। तो तुझे नई कार का हैप्पीनेस की जगह अभी जेलसी चालू हो गई कि वो मेरे साथ का कलीग है, वो कैसे बड़ी कार ले सकता है। इस तरह से देवगति में भी तेरे पास रत्न तो है, मगर दूसरे देव के पास मेरे से अच्छे रत्न है, ऐसी जेलसी होती है। ये परिग्रह का दुख होता है। तो चार गति के दुख का वर्णन हुआ। तो ढाला वन में चार गति के दुखों की बात आई। तो बाद में ढाला नंबर 2 जो हम चालू करेंगे, तो ढाला नंबर 2 में क्या आता है? तो ढाला नंबर 2 में दौलत राम जी कहते हैं कि देख भैया, तुझे चार गति के दुखों की बात से तू पीड़ित है ऐसा नहीं है। You are suffering because of 4 realms of existence. That's not the problem. There should be a root cause for the problem for all the things. For example, Akshita Didi is a doctor, so patient goes to her, and patient says, Didi, I have a headache, fever, malaise, not feeling like eating, running nose, sore throat, coughing, flame coming out, all kind of thing he's describing. So what is a doctor saying? That all your symptoms, 8, 10, 15 symptoms you are telling me, the root cause that you have pneumonia. So I'm not going to give you treatment for headache and fever and malaise and lack of appetite. I'm going to give you treatment to treat your pneumonia, which is underlying problem. Dhala number 2 says that all your चार गति के दुखों, उसका मूल कारण क्या है? रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज रॉन्ग फेथ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मिथ्यात्व की डेफिनेशन कौन करेगा? एक शॉर्ट में, एक सेंटेंस में करना है तो कौन करेगा मिथ्यात्व की डेफिनेशन? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता। कौन सी मान्यता उल्टी मेरी है? कि आत्मा और शरीर एक है। आत्मा और शरीर एक है, वो मेरी मिथ्या मान्यता है। कब से चालू है? जब निगोद में था ना, एक सामान्य बॉडी, कॉमन बॉडी, और अनंत जीव उसमें थे। तो वहां पर भी जीव कहता है ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। तो वहां से चालू हुआ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, मेरा शरीर। अरे यू नो व्हाट, देखो मैं कितना, मेरी उम्र तो 77 है, क्या मैं दिखाई देता हूँ 70? नहीं, अरे मैं अपनी बॉडी की केयर करता हूँ, यू नो, मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं, अरे क्या तू शरीर की सेवा करने की बात, ये तेरा मिथ्यात्व है। तो दूसरी ढाला में जो हम देखेंगे, मिथ्यात्व का स्वरूप बहुत सुंदर रीत से बताया गया है। बाद में आएगा तीसरी ढाला आएगी। तीसरी ढाला में बोला कि देख, पहला तो तेरा सिम्टम्स तूने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने डायग्नोसिस करके बताया कि तेरा डिजीज है, रॉन्ग फेथ तेरा डिजीज है। तो अभी क्या करना? तुझे मालूम हो गया तेरा प्रॉब्लम क्या है, तो
problem comes with the solution. Any problem you have, it always comes with the solution. तो ये प्रॉब्लम मिथ्यात्व का है, तो श्री गुरु कहते हैं कि हाँ मैं अभी तुझे सॉल्यूशन बताता हूँ, ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो डाला 3 में बताया कि सम्यक दर्शन क्या होता है, आत्मा की अनुभूति क्या होती है। ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर रूप से ये सम्यक दर्शन का चैप्टर यहाँ पर बताया गया है। बाद में आता है कि भाई डाला 3 तो सम्यक दर्शन की तो हमने बात सुन ली, आगे बोलो आगे क्या आता है। तो आगे बताया कि चौथी डाल में सम्यक ज्ञान की बात आती है और सम्यक चारित्र की बात आती है। ये सब देखेंगे हम, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, सम्यक दर्शन क्या। ये अभी तो कई लोगों के लिए ये फॉरेन वर्ड होगा कि भी हमने सुना नहीं था। नहीं, सुना तो था, मगर उसका मतलब क्या है हमको मालूम नहीं है। सम्यक दर्शन शब्द सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे सम्यक दर्शन प्राप्ति हो सकती है, मुझे हो सकती है, हम सबको हो सकती है। हमको श्री गुरु मिले हैं, गुरुदेव से जैसे गुरुदेव मिले हैं, कुनकुन आचार्य जैसे ऐसा आचार्य देव मिले हैं, श्रीमंत स्वामी जैसे तीर्थंकर मिले हैं, समयसार जैसा शास्त्र मिला है। हमको सब कुछ मिला है, हम आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा। बाद में डाला नंबर 5 में एक सुंदर रीत से बताया गया, 12 भावना का वर्णन किया गया। 12 भावना में क्या आता है, किस तरह से आता है। क्योंकि मुनिराज जब अपने भाव में स्थिर नहीं रहते हैं और छठे गुण स्थानक में आते हैं तो वो 12 भावना का चिंतन करते हैं। ये तो मुनिराज की बात हुई, मुझे क्या। अरे मुनिराज का नाम देके तुझे बताया गया है कि तुझे भी 12 भावना का चिंतन करने का है कि अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व भावना, संसार भावना, ये सब भावनाएं का तुझे समझना है और उसका तुझे पारायण करने का है। तो डाला 5 में 12 भावना दिखाई और डाला 6 में मुनिराज की चर्या की बात आई, मुनिराज का चारित्र की बात आई कि मुनिराज के चारित्र में क्या होता है। और मुनिराज का चारित्र संपूर्ण होता है तो 12वां गुण स्थानक आ जाता है और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ 6 ढाला में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? आप सब हर रोज ये गाथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर रोज आप मंदिर में आके अर्घ लेते, क्या अर्घ देते हैं? क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अरे ये 6 ढाले के क्लास में हम देवशास्त्र गुरु का अर्घ क्यों लेते हैं? अरे भैया तू सुन, तू जो ये 6 ढाला की बात सुन नहीं, 1 से 6 ढाला की बात आई ना, वो ही तू हर रोज मंदिर में आके अर्घ में बोलता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। मिथ्यामल यानी कि मेरा मिथ्यात्व को मैं तोड़ देता हूँ और
क्षण भर निज रस को पी चेतन, यानी कि सम्यक दर्शन की अनुभूति जो होती है मुझे, तो ये सम्यक दर्शन की अनुभूति हुई और मिथ्यात्व मेरा गया, यानी कि चार गति के दुखों भी मेरे गए। बाद में क्या हुआ, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अभी सम्यक दर्शन के बाद में मैं सम्यक ज्ञान करता हूँ और सम्यक चारित्र से आगे बढ़ते 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 12वें गुण स्थानक पर आता हूँ, तो मैं मेरा मिथ्यात्व कंप्लीट नाश हो जाता है, मोहनीय कर्म का कंप्लीट नाश हो जाता है। और बाद में जब मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, मुनिराज होता हूँ, 12 भावना करता हूँ, मुनिराज की चर्या करता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं 12 गुण स्थानक के बाद में 13वें गुण स्थानक में 4 चतुष्टय में मिलता हूँ, स्वचतुष्टय, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। और बाद में वहाँ से अघाती कर्मों को जलाकर मैं सिद्ध होने वाला हूँ। निश्चित तेरे सदृश्य प्रभु और हंत अवस्था पाऊंगा। हे प्रभु, तूने जो मुझे ये 6 डाला में से आत्मा की शुद्धि की विधि बताई है, वो प्राप्त करके मैं अपना कार्य करके मैं तेरे जैसा बनने वाला हूँ। ऐसा हम भगवान को चैलेंज देते हैं कि तूने जो मुझे सिखाया है तो वो मैं अपने जीवन में उतार कर, आपने जो पाथ बताया है वहाँ पर चल के ढाला 1 से चालू करके ढाला 6 करके मैं भी तेरे जैसा बनने वाला हूँ। इस तरह से सुंदर रूप से ये 6 ढाला की रचना हुई है। नेक्स्ट वीक से हम एक एक कड़ी लेके आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि ये मिथ्यात्व का स्वरूप समझने के बाद में वो तो छोड़ देगा, वो जो तुझे मालूम पड़ गया कि मिथ्यात्व है तो मैं छोड़ दूंगा। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो लेते हैं, कपल ऑफ मिनट्स है हमारे पास। हाँ, जूम में से या तो ऑडियंस में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेम्पल का ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं, तो यानी कोई क्वेश्चन पूछना है। मेरा क्वेश्चन था कि भाव कलंक का एग्जैक्ट डेफिनेशन या मीनिंग क्या लिख सकते हैं हम? भाव देखो, तेरे में पर्याय होती है, बराबर। पर्याय में क्या होता है, पर्याय में तो तीन वस्तु कर सकती है। या तो अपने भाव में स्थिर हो सकती है, सम्यक दर्शन। भाव में स्थिर नहीं है तो विभाव भाव में है। विभाव भाव में है तो क्या है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है। तो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ का जो कंटिन्यूअस भाव चलता रहता है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये उसको कलंक कहा गया और उसको भाव कलंक कहा गया। एक भावश्रुत ज्ञान से तुझे आत्मा की अनुभूति होगी, मगर ये अपनी आत्मा की अनुभूति में जाने की जगह में राग द्वेष में रचा पचा पड़ा हूँ। तो राग द्वेष में रहता हूँ, वो मेरा भाव कलंक है। और प्रचुर यानी कि इंटेंस राग द्वेष, ये मेरे शरीर में 18 बार एक पल्स में 18 बार जन्म मरण होता है, वो मुझे बहुत दुख देता है। तो उसका नाम प्रचुर भाव कलंक। ये आत्मा की परिस्थिति है, शरीर की नहीं है। शरीर तो एक है और अनंत जीव वहाँ पर है, मगर मेरा शरीर इस मान्यता से ये भाव कलंक रहता है, बराबर। थैंक यू। Anybody else? Any other questions? ऑन जूम जो है हेमलता जी, प्रशांत अंकल, आपको कोई क्वेश्चन है? डिम्पल भाभी, कोई क्वेश्चन आपको? नो। अच्छा, दैट्स गुड, चलो अच्छी बात है।
If there's no question, we can do the Jinwani and then we can do the Samapti. अक्षिता जी, आप वहाँ से जिनवाणी लेंगे कोई, और हाँ। ये जूम में से किसी को लेना है वो भी ले सकते हम हैं? इधर से सब साथ में कहेंगे। ओके। निज निधि निज में समाई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमो का मंत्र। સર જય બોલાવશો हाँ बोला। તમે? हाँ बोलो श्री जिनवाणी मातनो जय हो। जय जिनेन्द्र। ओके। જય जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक सेम टाइम। ओके, थैंक्स। ओके, जय जिनेन्द्र। if there is any comments or questions, or if we want to change something or whatever, just let me know later on. Okay, all right. I'll speak to everybody and I'll get back Yeah. to you, sir. Yeah. Thanks. Thank you, sir. Jai Jinendra. Bye.